presenting. Okay. Arya is here. Abha, Nikita, Disha, Prajakta, Akruti. Okay, I don't think Akruti was there in the last lecture. Akruti, were you there in the last lecture? I don't think so. No, sir. There was a network issue. Okay, okay, sorry. So I will take a small introduction from you today, but okay, that I'll tell about that later on. दिशा, तेरा कैमरे का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया क्या? No, sir. नहीं, अभी भी तो फोन से लॉगिन कर रही है. This is a different phone. Okay, okay, कोई बात. Another phone. That's okay. So I'm going to wait one more minute because I still think there are some people yet to log in, and then I'll tell you what to do. Okay, so 1 minute के लिए रुकते हैं, फिर शुरू करते हैं. One more minute, we'll wait. Okay. Okay, I think we'll start. Some more people yet to log in, but maybe थोड़ा टाइम के बाद वो लोग लॉग इन कर लेंगे. हम लोग शुरू करते हैं. So हम लोग को जो फर्स्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर था ये बैच के साथ, हमारे साथ बैच 3 के साथ my first lecture was there. Okay, last week. तो हमने क्या किया था, हम लोग ने बहुत ही बेसिक, हमने काफी टाइम वी स्पेंट इन इंट्रोडक्शंस. आई होप यू गाइस आर एबल टू हियर मी क्लियरली. मेरा हेडसेट जो है ना वो चार्ज हो रहा है इसके लिए, तो आधे घंटे के बाद आई कैन वेयर माय हेडसेट और थोड़ा और क्लियरली हो जाएगा आवाज. बट आर यू गाइस एबल टू हियर मी क्लियरली? आवाज आ रहा है ठीक से सब लोग को? आभा, दिशा, प्राजक्ता, आकृति, निकिता, आर्या. Yes. Okay. Okay. So anytime you are not able to hear me clearly ना, okay, please raise your hand या अपना ऑडियो को अनम्यूट करके मुझको बता देना. So
we spent a lot of time, getting to know each other, introductions, okay, way of functioning कैसा है, okay, bio में what am I going to teach, and okay, teaching pattern क्या होने वाला है, इसके बारे में काफी सारा discussion हो गया. And then towards the end, okay, we kind of started discussing about a concept called as cell. अभी cell के बारे में concept discuss करने का reason ये था that lot of things that we learn in these 2 years, okay, ये 2 साल में NCERT में you guys have 38 chapters, 11 थोड़ा सा heavy है because 22 chapters are there and 12th में 16 chapters are there, okay, दूसरे 4 chapters जो है वो 10 अलग अलग units में distributed है. And जैसे हम लोग आगे जाएंगे and we study more and more chapters, you will find that they have links to previous chapters, और बहुत सारे chapters का link ये cell वाले chapter में आएगा because ये बहुत ही fundamental chapter है, okay, the chapter is also very fundamental. chapter जो टॉपिक कवर करता है वो सब बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, सेल, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस विद द सेल. जैसे लास्ट टाइम मेरे को किसी ने बताया था, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सेल इज दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसका मतलब है ओके, जो ऑर्गेनिज्म है ओके, वो जो फंक्शंस करता है वो सारे फंक्शंस बिगिन एट द सेलुलर लेवल, ओके, एंड जो स्ट्रक्चर अटेन करता है, टिश्यू, ऑर्गन, ओके, वो जो स्ट्रक्चर अटेन होते हैं वो भी सारे cellular level से ही चालू हो जाता है. So the most basic and fundamental unit you can say of life of any living organism is a cell. Okay, multicellular organisms में तो बहुत सारे cells होते हैं और वो अलग अलग tissues और organs में distributed होते हैं. But there are so many unicellular organisms also which are living on the planet, और वो अपना independent existence अच्छे से करते हैं. They are able to survive, they are able to grow, they are able to reproduce. मतलब even if the organism is unicellular, it can perform all the requirements that are needed, okay, for it to survive, adapt, grow, reproduce, everything. Okay, तो उसका मतलब सेल इज अ वेरी ओके फंडामेंटल ओके स्ट्रक्चर, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर है. और ये चैप्टर के लिंक्स अलग अलग चैप्टर्स में है, और सेल के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे, सेल के टाइप्स के बारे में समझेंगे. सेल के दो जो टाइप्स हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में अच्छे से बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेंगे. तो आगे के टॉपिक्स में जो थोड़े से हेवी टॉपिक्स है वो समझने के लिए इजी हो जाएगा. आई जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. जैसे कि ये चैप्टर में कैसा है, ये चैप्टर 3 बड़े पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, ये वाला कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो एनसीईआरटी में चैप्टर का नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 11th बायो, एंड स्टेट बोर्ड 11th बायो टेक्स्ट बुक में ओके चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. राइट, ओके, उसका मतलब यू गो टॉक about the cell, okay, what is its structure, how is it organized, okay, what are the different types. तो ये 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है. पहला ओके, वी विल लर्न जस्ट अबाउट द सेल, मतलब व्हाट इज द सेल, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स. आज हम लोग थोड़ा सा एक राइट अप देखेंगे. ओके, वी विल सी सम नोट्स, वी विल सी अ राइट अप अबाउट ओके द बेसिक फीचर्स ऑफ सेल. उसके बाद ओके वी विल लर्न समथिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सेल थियरी. उसका मतलब है अर्ली 1800s में 1838 1839 के आसपास कोई साइंटिस्ट ने ये सेल्स के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना चालू किया. ओके, और उनके जो फाइंडिंग्स थे वो फाइंडिंग्स को वो लोग ने कोलैबोरेट किया. ओके, वो लोग ने मिलके एक थियरी पब्लिश किया विच इज कॉल्ड एज अ सेल थियरी. सेल थियरी में 3 से 4 अलग अलग साइंटिस्ट इन्वॉल्व है. 3 साइंटिस्ट को इसको क्रेडिट जाता है. ओके, एंड उन्होंने क्या किया, उनका जितना भी ऑब्जर्वेशन था, whether it is regarding animal cell or whether it is regarding plant cells, वो observations को उन्होंने नोट डाउन किया, कॉमन फाइंडिंग्स निकाले और उसके बेसिस पे सेल थियरी को प्रपोज किया, which gives us the most fundamental information, basic information about what is a cell, what it can do, why it is so important, okay, what is the process of cell division and how it is related to cells. इसके बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है. एक बार ये सेल थियरी एस्टेब्लिश हो गया ओके अर्ली 1800s, तो अर्ली 1800 से 1830 से लेके ऑलमोस्ट 1900 तक ओके इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन था. और फिर 1900s ओके का जो पूरा सेंचुरी था वो वाला ओके, और अर्ली 2000 ऑल्सो, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐड किया, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने और बहुत ज्यादा, बिकॉज जितना तुम्हारे पास साइंस मॉडर्नाइज हो जाता है, एडवांस हो जाता है, यू गेट मोर टूल्स एंड टेक्निक्स टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स, उतना तुम्हारा नॉलेज बढ़ते जाता है और डेटा यू गेट, और उसके हिसाब से और इम्प्रूवमेंट आते हैं प्रीवियस थियरीज में. तो ऐसे ही साइंस बढ़ता है. साइंस में क्या होता है, पहले कोई उस वक्त के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई थियरी प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस प्रपोज करता है और वो एस्टेब्लिश हो जाता है. फिर कुछ सालों के बाद, काफी सारे सालों के बाद और रिसर्च हो जाता है और न्यू नॉलेज आ जाता है. उसके वजह से पहले वाला जो थियरी है वो डिस्प्रूव हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है. राइट, तो सेल थियरी में क्या हुआ, और पॉइंट्स ऐड करते गए, मतलब जितना सेल के बाद, बिकॉज प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन था वो सब करेक्ट था ओरिजिनल सेल थियरी में, तो बाद में जितना और रिसर्च हुआ और इंफॉर्मेशन मिला तो एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी में और पॉइंट्स ऐड किए गए. और अभी
cell theory is called as a modern cell theory because उसमें और points add किए गए हैं, okay, more relevant points are added. तो पहले जो establish हुआ था early 1800s में वो cell theory है, और अभी हम लोग जो पढ़ते हैं या हम लोग जो refer करते हैं that is called as a modern cell theory. तो हम लोग हमारे सिलेबस में पहले सेल की फीचर्स देखेंगे, बाद में सेल थियरी देखेंगे, मॉडर्न सेल थियरी देखेंगे, फिर हम लोग कोई कोई ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल्स देखेंगे जो ये सेल थियरी फॉलो नहीं करते. ओके, दे डू नॉट ओके फॉलो दिस सेल थियरी बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल. जैसे कि वायरस है, ओके, वायरस ए सेलुलर है. ए सेलुलर का मतलब उसके पास सेल का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो ओके नीदर लिविंग है कंप्लीटली, नीदर नॉन लिविंग है कंप्लीटली, तो वो बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है. तो वायरस जैसे ऑर्गेनिज्म सेल थियरी को फॉलो नहीं करते, वो किसी भी किंगडम में बिलोंग नहीं करते, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द किंगडम्स. तो वी लुक एट सम ऑफ द एक्सेप्शंस टू सेल थियरी एंड मॉडर्न सेल थियरी. फिर हम लोग चैप्टर में जैसे और आगे बढ़ेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइमलाइन. टाइमलाइन का मतलब है अर्ली 1600s, अर्ली 1590 या अर्ली 1600 से सेल के बारे में इंफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, जब माइक्रोस्कोपी ओके डेवलप हो गया, माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो गए. पहले के बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप्स थे, ग्लास लेंसेज को ओके मॉडिफाई करके यूज करते थे. फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल, बाकी के माइक्रोस्कोप्स आने डेवलप होने लग गए, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने लग गया. तो टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन का मतलब है व्हाट इज द टाइमलाइन इन फाइंडिंग द हिस्ट्री ऑफ द सेल, और हाउ द हिस्ट्री ऑफ द सेल ओके बिकेम नोन टू अस. ओके, ये जो डेवलपमेंट्स है इन द टाइमलाइन उसके बारे में हम लोग लिखेंगे. तो राइट फ्रॉम 1590 60 अर्ली 1600 से लेके 1900 तक we'll write down the important events, we'll write down which scientist contributed what. okay, तो साइंटिस्ट का नेम, ईयर, कंट्रीब्यूशन, इसका एक हम लोग छोटा सा लिस्ट बनाएंगे, राइट. ओके, और ये सब करने के बाद देन वी विल लुक एट व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है. ओके, सेल्स अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप्स क्या होते हैं, वो साइज में कैसे वेरी करते हैं, वो फंक्शंस में कैसे वेरी करते हैं. फंक्शंस का आज थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग क्लास में करने वाले हैं. ओके, सो हाउ डू दे डिफर इन देयर फंक्शंस आल्सो. तो ये सारा जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. The second part of the chapter is to study in detail the prokaryotic cell. Prokaryotic cell को डिटेल में पढ़ना, that is the second part of the chapter. मतलब what is a prokaryotic cell, right? What are the features, what are the basic features of prokaryotic cell, how do they differ from other cells, and prokaryotic cell में कौन से organelles, organelle का meaning last time हमने discuss किया था, part और component of the cell. तो सेल के अंदर, prokaryotic cell के अंदर कौन से organelles होते हैं, और वो हर एक organelle को हमको डिटेल में पढ़ना है. That is the second part of the chapter. And then remaining, okay, तो इतना करेंगे तो about 60% of the chapter complete हो जाता, 55-60%. Remaining 40-45% of the chapter is purely about eukaryotic cell. Because prokaryotic cell में हम लोग 8 से 10 शायद ऑर्गेनल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा पढ़ेंगे, 15, 16, 17 इतने सारे ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं. सो देयर आर मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल. तो फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल की फीचर्स क्या हैं, हाउ दे डिफर फ्रॉम अदर सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे जो वाइडली स्टडीड या मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है प्लांट एंड एनिमल सेल्स, उनके डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, विल डिफरेंशिएट, एंड देन वी विल लुक एट ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और फिर हर एक ऑर्गेनल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. That is how this chapter gets over. It's a big chapter, but it is very fundamental because it gives you very good knowledge about the cell, and ये chapter के links दूसरे से chapter से मिलेंगे. Okay, तो जैसे हम लोग आगे chapters करते जाएंगे, you will realize कि अरे हाँ, okay, there are links to previous chapters. Okay, और जो student ये link establish कर सकता है, वो NEET में अच्छा score करता है, because the student is able to establish link between chapters and link between topics. उसका मतलब उसके topics और chapters revised है, याद है उसको, तो ही link establish होता है, नहीं तो link connect नहीं हो जाता है. Okay, so who among you are able to do that over a period of time, not initially, okay, are likely to score much better because वो ज़्यादा retain हो जाता है दिमाग में. So always try to okay revise topics जो अभी चल रहे हैं, previous चल रहे हैं, okay, अच्छे से revision रखोगे for these 2 years, you'll be easily able to connect, okay, topics and chapters with each other. Right, okay. So before I go ahead, okay, ये तो chapter के बारे में था. आज chapter में हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे, ज़्यादा नहीं. Maybe we will look at the basic features of cell, and maybe we will look at what is cell theory or scientist. इतना ही हम लोग देखेंगे. उसके अलावा हमारे पास और भी discussion करने के लिए points है आज. Okay. तुमको last time मैंने एक assignment दिया था, तो हमारे Google Classroom पे upload किया था, और if some of you are not on the Google Classroom, maybe you are on the group with ma'am, कोमल मैम के साथ तुम interact करते हो, तो उन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आई थिंक तो शेयर किया था, और मैंने क्वेश्चन नंबर्स भी तुम लोग को बताए थे, 1 2 3 4 7 and 10. आई थिंक सो दीज आर द क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट अबाउट. तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. ओके, बट बिफोर वी गेट टू दैट, ओके, आई वांट यू गाइस टू टेल मी अबाउट what are the 5 different kingdoms
in which the living world is distributed. Because ये 5 किंगडम्स का बाद बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में. इस चैप्टर में है, फिर एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में इसका डिस्कशन आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है उसमें उसका डिस्कशन आएगा. आगे जाके हम लोग 2 इंडिविजुअल किंगडम्स को 2 चैप्टर्स में डाले हैं वो लोग ने. सो 2 डिफरेंट चैप्टर्स आर डेडिकेटेड टू 2 डिफरेंट किंगडम्स. इतना डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, आगे भी आएगा. सो आई जस्ट वांट टू नो इफ एनी वन ऑफ यू प्रेजेंट ओवर हियर, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ओके, आज के सेशन में, do you know the living world is divided into how many different kingdoms and what are the different kingdoms? And can you tell me one sentence about each? Okay, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट सारे किंगडम्स के बारे में बोले. इफ यू नो द नेम ऑफ वन किंगडम तो तुम लोग अपना हाथ रेज कर सकते हो एंड आई कैन आस्क यू कि हाँ बाबा ठीक है ये किंगडम है, चलो ये किंगडम के बारे में कोई एक लाइन बताओ. Then someone else can tell about some other kingdom, someone else can tell about some other, right? So before we start, okay, discussing at least 1 or 2 points about the kingdoms in which the living world is distributed. Living world का मतलब है all the living organisms on this planet together constitute the living world. तो before हम लोग वो discuss करें, can anyone tell me in how many kingdoms the living world is currently distributed? या most common classification क्या है living world को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, कितने किंगडम्स में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड को, ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट इन दिस वर्ल्ड? वेरी गुड निकिता, 5. द आंसर इज 5. फैंटास्टिक. ओके, तो निकिता हैज गिवन मी द परफेक्ट आंसर. ये पूरा लिविंग वर्ल्ड 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है. हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि बहुत पहले, मतलब 1700s में, मिड 1700s में, और उसके भी पहले जब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, एरिस्टोटल के टाइम से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, तो पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, प्लांट एनिमल ऐसा था. फिर आगे जाके उसमें एडिशंस होते गए. ओके, एंड देन फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया. ओके, एंड 5 किंगडम के बाद 1990 में सबसे लेटेस्ट वाला क्लासिफिकेशन आया, विच इज अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. उसको 3 डोमेन 6 किंगडम बोलते हैं, इसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो उसका मतलब है पूरा लिविंग वर्ल्ड 6 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड है, और वो 6 किंगडम्स 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है. ओके, तो ऐसा फर्दर क्लासिफिकेशन है. आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू इन डिटेल. बट देन एज निकिता हैज सेड करेक्टली, 5 किंगडम मेजर क्लासिफिकेशन है जो अभी भी फॉलो किया जाता है, और तुम्हारे सिलेबस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों स्टेट बोर्ड एज वेल एज एनसीईआरटी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए बोला है. दे हैव आस्क्ड अस टू रीड द 5 किंगडम्स इन डिटेल. So Nikita has already given you an answer that living world 5 kingdoms were divided. Now, so I want someone else to tell me which are the 5 different kingdoms. So apart from Nikita, I want someone else to answer. Okay, very good. Abha is giving me an answer, which chat box में लिख रही है. Very good. She's given all the 5 kingdoms. So Abha, next time अगर तुझे लिखने का इतना मेहनत नहीं करना है, you can always unmute your audio and you can tell the answer. You can just raise your hand. I will ask you to unmute. If it is easier for you, लिखने के लिए तकलीफ नहीं करना है तो सब लोग सुन भी सकते हैं. So it is good. But what Abha has told is right. So 5 different kingdoms are. पहला है Monera, MONERA, Monera. दूसरा है Protista, PROTISTA. तीसरा है Fungi. चौथा है Plantae, और पांचवा Animalia. So the living world is divided into 5 different kingdoms. अभी जैसे मैंने बोला 1990 में further classification हुआ है, but we can stick to 5 kingdom classification because हमको syllabus में इसको डिटेल में पढ़ना है. Very good. Does anyone know 1 or 2 sentences about Monera? Okay, can anyone tell what is kingdom Monera? Who is included in kingdom Monera? कौन included है kingdom Monera में? Which organisms are part of kingdom Monera? सोच के बोल सकते हो. Okay, there is no rush. You can think about it and you can let me know. You can take half a minute, you can take 1 minute. You can let me know. Kingdom Monera. सोचो. Kingdom Monera. नहीं? No one? आर्या, आभा, दिशा, प्राजक्ता, आकृति, निकिता? नहीं? हाँ आभा बोलना. ओके, बैक्टीरिया. वेरी गुड. निकिता ने एक आंसर दिया, दैट इज फैंटास्टिक. आई वांट आभा आल्सो टू आंसर बिकॉज़ उसको भी आंसर करना था. बोला आभा. So maybe unicellular. यस, दोनों का आंसर बराबर है. आभा का भी आंसर बराबर है और निकिता का भी आंसर बराबर है. ओके, निकिता ने बोला बैक्टीरिया या बैक्टीरियम. ओके, सो प्रोकैरियोटिक, सॉरी, किंगडम मोनेरा में, ओके, all the organisms are prokaryotic.
प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. प्रोकैरियोटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोकैरियोस या प्रोकैरियन. ओके, एंड प्रोकैरियोस या प्रोकैरियन का मतलब है ओल्ड न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. उसका मतलब ओके, ऐसे सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट्स बाहर के साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाता है. ओके, एंड देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओके द न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, which in other words means there is no proper nucleus. So no proper nucleus matlab hi old nucleus, primitive nucleus, not well defined nucleus. These are prokaryotic cells, and prokaryotic cells are included in kingdom Monera. Kingdom Monera में सारे prokaryotic cells होते हैं. Prokaryotic cells बाकी किसी भी kingdom में नहीं पाए जाते. So kingdom Monera is the only prokaryotic kingdom. ये जानना जरूरी है बिकॉज हम लोग ये चैप्टर में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखने वाले हैं, राइट. सो प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही किंगडम है लिविंग वर्ल्ड में, मोनेरा. एंड ओके, मोनेरन्स बोलो मतलब मेंबर्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा. प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलो या बैक्टीरिया बोलो, दे आर ऑल द सेम. और आभा का भी आंसर राइट है बिकॉज ऑल ऑफ दीस सेल्स आर यूनिसेलुलर. सो किंगडम मोनेरा में ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर इंक्लूडेड, एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नथिंग बट बैक्टीरिया. तो तुम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, मोनेरन्स बोलो या बैक्टीरिया बोलो, ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग. ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग. ओके, तो हमने दो चीज सीखी अबाउट मोनेरन्स. पहला, दैट मोनेरन्स कंटेन बैक्टीरिया, एंड सेकंड, दे कंटेन ओके unicellular prokaryotic cells. मतलब all the cells are unicellular and they are prokaryotic, which means do not contain a well defined nucleus. So monerans, unicellular prokaryotic और bacteria mean the same thing. So that is your kingdom Monera. बहुत डिटेल में हम लोग आगे उसको पढ़ने वाले हैं. फैंटास्टिक. तो थैंक यू आभा एंड निकिता. ऐसे होना चाहिए. ओके, इट इज ओके if your answer is incomplete, if your answer is a little bit incorrect, or if it is completely correct, it's all fine unless okay you develop that confidence of answering in class. So don't worry about what other people are thinking. तुमको अगर सही आंसर लगता है okay या partially right भी है, just raise your hand, okay, and I will ask you to okay give me the answer. ठीक है, चलो सेकंड वाला कौन सा है? प्रोटिस्टा. So what do you think is kingdom protista? Who do you think is in kingdom protista? ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम तुमने बहुत बार सुना है. निकिता, वेरी गुड, बोल. algae. एल्गे नहीं है. एल्गे थोड़ा आगे आएगा क्लासिफिकेशन में, but no problem. Okay, very happy that you are okay attempting to give answers, okay, and you are taking the initiative of giving answers. So Nikita, very happy with you. बहुत अच्छा. But चलो थोड़ा और देखते हैं, 30 seconds more to see if someone else can give me an answer on who is included in kingdom protista. Kingdom protista. Sir, all the eukaryotes animals and plants. यूकैरियोटिक बराबर है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स नहीं आते. यूकैरियोटिक बराबर है बिकॉज मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक किंगडम था, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स खत्म हो गए. उसका मतलब बाकी चारों किंगडम्स यूकैरियोटिक है. प्रोटिस्टा में भी सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक है, फंगाई में भी, प्लांटे में भी, एनिमलिया में भी. बराबर है, ये चार तुम्हारे किंगडम्स चारों यूकैरियोटिक है. प्रोटिस्टा में कौन होते हैं? प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बट सारे यूनिसेलुलर. मतलब जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है लेकिन सारे यूनिसेलुलर, वैसे ही प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है और सारे यूनिसेलुलर. वेरी गुड निकिता. निकिता हैज रिटन द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, अमीबा. सो अमीबा है, पैरामोशियम है, यूग्लिना है. ओके, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, बिकॉज प्रोटिस्टा से आगे जो तीन बाकी यूकैरियोटिक किंगडम्स है, फंगाई, उसमें थोड़े यूनिसेलुलर है और थोड़े मल्टीसेलुलर भी है. और जैसे प्लांटे में जाएंगे बहुत ही कम यूनिसेलुलर है, मैक्सिमम मल्टीसेलुलर है. और एनिमल्स में जाएंगे तो हार्डली यू विल फाइंड एनी यूनिसेलुलर एनिमल. ओके, लोवेस्ट जो एनिमल्स हैं, जब तो सबसे कम इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, वो भी यूनिसेलुलर नहीं है. दे कंटेन फ्यू सेल्स, शायद उनके बॉडी में प्रॉपर टिश्यू या ऑर्गन नहीं हो, बट फिर भी दे आर मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलरिटी जैसे हम लोग यूकैरियोटिक किंगडम में आगे बढ़ते हैं ना, यूनिसेलुलरिटी कम होते जाता है, इट बिकम्स लेस एंड लेस. जैसे यूकैरियोटिक किंगडम शुरू हुए प्रोटिस्टा से, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर. You go to fungi, many are unicellular, many are multicellular. You go to plantae, very few are unicellular, maximum are multicellular. You go to animalia, most of them are, almost all of them are multicellular. तो जैसे तुम यूकैरियोटिक किंगडम्स में आगे बढ़ते हो, यूनिसेलुलरिटी कम होते जाता है, मल्टीसेलुलरिटी ये फीचर ओके बढ़ते जाता है, ज्यादा इवॉल्व या एडवांस ऑर्गेनिजम्स को तुमको दिखने मिलते हैं.
who is part of kingdom Protista? All unicellular eukaryotic organisms, eukaryotic unicellular organisms like amoeba, okay, like paramecium, these are all okay present in kingdom Protista. Okay, उसमें तुमको और एक ऑर्गेनिज्म में तुम लोग को बोलता हूँ जिसके बारे में वापस तुमने सुना है, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करता है. That also belongs to kingdom Protista. You know who it is? The causative agent of malaria. Do you know who is the causative agent of malaria? Does anyone know who causes malaria? सोच के बताओ. Okay, I've told you my sessions are all usually I try to make them interactive. Okay, तुम लोग जितना मुझसे ज़्यादा बात करेंगे, I'll become more and more interactive. Okay, और सेशन और अच्छा होते जाएगा. अगर ये सिर्फ वन वे होते जाएगा तो इट बिकम्स ओके लिटिल बिट मोनोटोनस और ड्राई और बोरिंग होते जाता है. सो इट इज इन योर हैंड्स टू मेक इट इंटरैक्टिव. ऑफलाइन में तो ओके आई विल मेक यू टॉक बिकॉज आई विल बी देयर इन द क्लास विद यू. ओके, एंड आई विल मेक यू गिव आंसर्स एंड टॉक विद मी. ओके, सो दैट इज ओके. बट ऑनलाइन ये थोड़ा सा अलग सेटअप है, अलग मॉडल है. सो दैट इज व्हाई. ओके, सो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू मेक इट इंटरैक्टिव. ओके, अब तेरा आंसर ना, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव गिवन द आंसर, बट ये कंप्लीटली राइट नहीं है. जैसे मस्कीटोज डू नॉट कॉज मलेरिया. मस्कीटोज आर ओनली द वेक्टर. वेक्टर का मतलब डिलीवरी व्हीकल, मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है उसको एक जगह से दूसरे जगह वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं. तो बायोलॉजी में डिलीवरी व्हीकल को वेक्टर बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर, VECTOR. सो मस्कीटोज आर ओनली द वेक्टर, द डिलीवरी व्हीकल. पॉजिटिव एजेंट अलग है. पॉजिटिव एजेंट का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ओके, नाउ कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हमारा कैसा है, होमो सेपियंस, बराबर है. तो पहला जो पार्ट है उसको जीनस बोलते हैं, सेकंड पार्ट को स्पीशीज बोलते हैं. तो जीनस और स्पीशीज ऐसा साइंटिफिक नेम होता है. तो वैसा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, उसमें प्लाज्मोडियम जीनस है और वाइवैक्स स्पीशीज है. तो चार अलग अलग स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम के ही जो मलेरिया कॉज करते हैं. हमारे आजू बाजू में जो कॉमनली मलेरिया कॉज होता है, जो हम लोग को होता है, एंड वी गेट बेटर क्विकली. ओके, that is caused by these two, Plasmodium vivax और दूसरा वाला है Plasmodium falciparum. ये दो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं जो नॉर्मल मलेरिया कॉज करते हैं. जो थोड़ा सा और डेंजरस वाला मलेरिया है, ओके, जो थोड़ा फेटल हो सकता है, पीपल कैन डाई आल्सो बिकॉज ऑफ मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया उसको बोलते हैं. दैट इज कॉज्ड बाय ओके ऑर्गेनिजम्स जिनका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिये. ये थोड़े डेंजरस टाइप वाले हैं. ओके, वो थोड़ा सा और इंटेंसिव या डेंजरस ओके क्रोनिक डिजीज कॉज करते हैं. बट ये प्लाज्मोडियम भी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी किंगडम मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है. काफी सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, वो ये पर्टिकुलर किंगडम से आ सकते हैं. ओके, सो ये तुम्हारा हो गया किंगडम प्रोटिस्टा. दिस इज सेकंड वन. देन यू कम टू किंगडम फंगाई, राइट? डज एनीवन वांट टू अटेम्प्ट गिविंग अ आंसर ऑन किंगडम फंगाई? ओके, प्राजक्ता, दिशा, आकृति. ओके, आकृति, आई नो दिस इज your first lecture with me, but you try to be okay, थोड़ा creative बनो, थोड़ा okay, try to use apply your head. कहाँ पे मैंने पहले इसके बारे में सुना है 9th 10th में. You can just try and attempt an answer, even प्राजक्ता, okay, दिशा for that matter. Don't worry कि उसमें से कितना right है कितना wrong है. Okay, just okay, try to be really free in the lecture. Okay, that is what I want in bio for the next 2 years. You express yourself. Right wrong बाद में देखेंगे. Right wrong MCQ में देखेंगे, जो जिसमें तुमको ग्रेड करने वाले हैं हम लोग. डिस्कशन में तो सब चलता है, राइट? ओके, सो किंगडम फंगाई. सो डू यू नो हु इज इंक्लूडेड इन किंगडम फंगाई? किंगडम फंगाई में कौन आएंगे? राइट, सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट फंगस और फंगाई लिविंग वर्ल्ड में. बहुत सारे हैं, 4 बड़े बड़े क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है. ये फंगाई अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं. हमारे घर पे फूड प्रोडक्ट्स पे, ब्रेड पे, लेदर पे, बाहर सॉइल पे ग्रो करते हैं, ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं ये फंगाई. ओके, एंड बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और ये फंगाई का बहुत ही यूनिक फीचर होता है, बहुत ही अलग और यूनिक फीचर होता है ये फंगाई का, दैट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना इज सैप्रोफाइटिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है. नाउ अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर वो तुम बैक्टीरिया से शुरू करके, मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सबसे बैक्टीरिया से भी शुरू करके बहुत ही इवॉल्व्ड मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक भी जाओगे, ऑर्गेनिजम्स तक जाओगे, तो पूरे वर्ल्ड में ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 है. एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक. डू यू नो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? If organism is autotrophic, if organism is showing autotrophic mode of nutrition, autotrophic,
तो ये वर्ड पहले सुना है कभी तुमने, ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ सुना रहेगा तुमने, सोचो Yes, sir. क्या मतलब, क्या मीनिंग है उसका निकिता, ऑटोट्रॉफिक का? They will produce their food themselves. दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। और निकिता तू ये आंसर कर, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है उनको क्या बोलते हैं? Heterotrophic. They're called as heterotrophs. Fantastic. So mode of nutrition wise पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दो अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स में अलग अलग टाइप्स भी हैं जो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये चैप्टर में भी देखने वाले हैं, हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। सो ऑटोट्रॉफिक में यू हैव ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन अपने खाना बनाने के लिए टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो लाइट से डिराइव करते हैं, सनलाइट से या लाइट से, तो उनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स के पहले फोटो डाल देने का मतलब सनलाइट से एनर्जी डिराइव होता है, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डिराइव करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ऑक्सीडेशन से, इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो सब आगे के चैप्टर्स का डिस्कशन है। अभी व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज तुम लोग इसको रिटेन करोगे तो तुम लोग को बेनिफिट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, द स्टूडेंट्स इवन इन बैच 3 who have started with me right now, okay, they are going to be much more benefited rather than the students joining a little bit later on. क्यों? Because मेरा तुम्हारे साथ ये डिस्कशन ऑलरेडी हो रहा है, तो बाय द टाइम मैंने रिपीट दिस विद समवन एल्स और रिवाइज, यू गाइस तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी पक्का बैठ गया, उसका मतलब इज गोइंग टू रिमेन इन योर हेड मच मोर स्ट्रांगली देन ओके स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जॉइन लेटर ऑन। और यही बेनिफिट होता है, बिकॉज ओके तुमको उतना ज्यादा टाइम मिल जाता है उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, या बार बार आगे सुनोगे तो और पक्का होता जाएगा। इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू इन ऑल द चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू कम अहेड, ओके। सो ये है तुम्हारे तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मैंने क्लासिफिकेशन बोला, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक और फर्दर क्लासिफिकेशन। हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तीन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहा है और इन रिटर्न में फूड ले रहा है। सो इफ आई एम अ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, आई एम helping some other organism of some different species, and in return the organism is helping me, okay, by giving me food। तो मेरा फूड का रिक्वायरमेंट मीट हो गया दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो मैं हेटेरोट्रॉफिक ही हूँ, लेकिन ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। इसको सिम्बायोटिक कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिजम्स कैन बी सिम्बायोटिक, दूसरा दे कैन बी सैप्रोफाइटिक, जैसे ये फंगाई है। तो ये फंगाई से पूरा डिस्कशन निकला। सैप्रोफाइटिक का मतलब है फंगाई जैसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं डेड होस्ट से, मतलब एनिमल इज डेड, इट इज डिकम्पोजिंग, प्लांट मटेरियल गिर गया है, ट्री टूट के गिर गया है, ब्रांचेस, लीव्स, ट्विग्स ड्राई होके गिर गए हैं, ऐसे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फिर ऑर्गेनिक मैटर प्लांट से एनिमल से है, डज नॉट मैटर, उसके ऊपर वो फीड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में दूसरा ग्रुप है सैप्रोफाइटिक, और तीसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब है ऑर्गेनिजम्स लिविंग होस्ट। ऑर्गेनिजम्स को कौन चाहिए? लिविंग होस्ट, मतलब जिससे वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी लिविंग, वो होस्ट है। फिर वो होस्ट के सरफेस के ऊपर रह सकते हैं या होस्ट के बॉडी के अंदर रह सकते हैं, बट दे कॉज इन्फेक्शन इन दैट होस्ट, ओके, होस्ट बीमार हो जाता है और ये ऑर्गेनिजम्स को उनका न्यूट्रिशन डिराइव हो जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैरासाइटिक, या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक होता है। तो सिम्बायोटिक हो, सैप्रोफाइटिक हो या पैरासाइटिक हो, ये तीनों आर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। और एक टाइप है जो हम लोग फॉलो करते हैं, ह्यूमंस, हम लोग के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग भी हेटेरोट्रॉफिक ही है। और हेटेरोट्रॉफिक में और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता है जो ह्यूमंस और दूसरे थोड़े ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक, HOLOZOIC, HOLOZOIC, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, वी इंजेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड, और कॉम्प्लेक्स फूड हमारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाने के बाद एंजाइम्स एंड जूसेस के वजह से ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल फॉर्म और फिर ऑब्जॉर्ब हो जाता है। सो वी इंजेस्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल, बट विद इन द सिस्टम वी आर एबल टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल मटेरियल। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक। लेकिन हम लोग जो इंजेस्ट करते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर हेटेरोट्रॉफिक। इतना डिस्कस करने का दो रीजंस था, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कम इन द लैटर चैप्टर्स। प्लस हम लोग फंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफाइटिक। फंगाई के अंदर, किंगडम फंगाई के अंदर और एक ग्रुप इंक्लूडेड है जो है यीस्ट। यीस्ट के बारे में सब लोग ने सुना है, बिकॉज वो फर्मेंटेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। उसके अलावा भी उसके बहुत फायदे होते हैं, लेकिन कमर्शियली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यीस्ट, बिकॉज वो हम लोग को अलग अलग फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स देते हैं। तो यीस्ट जो है, दे आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर फंगाई। उसके अलावा मशरूम्स,
ओके मशरूम्स वगैरह हम लोग जो खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पिज्जा के ऊपर टॉपिंग डालते हैं, दिस मशरूम्स आल्सो बिलोंग टू किंगडम फंगाई, राइट। तो ये सारे किंगडम फंगाई में आते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दो किंगडम्स आ गए, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, बराबर है। ओके किंगडम प्लांटे, कैन एनीवन टेल मी द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ किंगडम प्लांटे? किंगडम प्लांटे का सबसे यूनिक फीचर क्या है? मतलब किंगडम प्लांटे के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब ये करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है? सबको मालूम है, ऑल ऑफ यू नो। आर्या आल्सो नोज द आंसर, आभा आल्सो नोज So दिस। photosynthesis. वेरी गुड। ओके दिशा, तू भी, दिशा ने भी आंसर दिया और आभा ने भी लिख के दिया, फैंटास्टिक। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्लांट्स ही कर सकते हैं? नहीं, देयर आर फ्यू मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, है थोड़े बहुत है, सब नहीं, थोड़े से मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। एंड देयर आर सम मेंबर्स ऑफ मोनेरा आल्सो। बैक्टीरिया में भी बहुत थोड़े थोड़े बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोटिस्टा में भी थोड़े थोड़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू। In terms of the total number of organisms who can do photosynthesis on this planet, these organisms are very few. Maximum amount of photosynthesis is done by plants itself. Okay, तो photosynthesis करने वाला जो major group of organisms है वो kingdom plant के अंदर included है। और फिर उसमें बहुत further divisions है। Seed bearing plants एक group में, non seed bearing plants अलग group में, फिर वो दो सब kingdoms को further divide किया है, और further बहुत classification है। But that is for later. हमारे पास किंगडम प्लांटे का पूरा चैप्टर है, they will give us a full chapter on kingdom plantae which we have to do. लास्ट में है किंगडम एनिमेलिया। ओके लास्ट में है तुम्हारे पास किंगडम एनिमेलिया। ओके कैन यू टेल मी वन यूनिक फीचर, ऐसा यूनिक फीचर किंगडम एनिमेलिया का जो हार्डली किसी और दूसरे किंगडम में है? हार्डली, थोड़ा बहुत वो फीचर प्रोटिस्टा से मैच करता है, थोड़ा बहुत वो फीचर है ना, वो प्रोटिस्टा से मैच करता है, लेकिन बहुत बहुत सारे टर्म्स में ये फीचर यूनिक है किंगडम एनिमेलिया के लिए। सोचो। So multicellular, they are multicellular बराबर organisms. दीजिए, तेरा आंसर बराबर है कि वो मल्टीसेल्यूलर है। ओके वो मल्टीसेल्यूलर है। एनिमल्स में यूनिसेल्यूलर तो मिलते ही नहीं है, हार्डली कुछ है, कुछ भी नहीं, एक्सेप्शंस थोड़े बहुत रहे कैसे रहेंगे तो, बट Answer, ऑलमोस्ट they do not possess chlorophyll. यस दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल। लेकिन वो यूनिक नहीं हो गया ना दिशा, बिकॉज एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, बट फंगाई के पास भी नहीं है, बहुत सारे प्रोटिस्टा के पास भी नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया मोनोरेंस के पास भी नहीं है। ऐसा एक फीचर है। अभी ये दिशा ने जो बोला ना उस पर ध्यान दो। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं यूनिसेल्यूलर, किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं मल्टीसेल्यूलर, लेकिन इन दोनों में एक यूनिक फीचर है, इन दोनों में एक यूनिक फीचर है जो बाकी तीनों किंगडम में नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स है यूनिसेल्यूलर, उनके पास कुछ नहीं है, और किंगडम एनिमेलिया हम लोग के सेल्स, वी आर मल्टीसेल्यूलर, लेकिन हमारे सेल्स में भी कुछ वही चीज नहीं है, और वो चीज फंगाई में प्रेजेंट है, प्लांटे में प्रेजेंट है, मोनेरा में प्रेजेंट है। सोचो। आई एम गोइंग टू बी बैक इन हाफ अ मिनट। मैं मेरा हेडसेट लेके आता हूँ, चार्ज हो गया रहेगा, सो ओके तब तक सोचो, फिर मैं आने के बाद मुझको आंसर दो। ओके आई विल बी बैक इन हाफ अ मिनट। ओके सोचा किसी ने? मिला किसी को आंसर? क्या है किंगडम प्रोटिस्टा में और किंगडम एनिमेलिया में? लेकिन ये एनिमेलिया का ज्यादा यूनिक फीचर है, इट इज मोर ऑफ अ फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया देन किंगडम प्रोटिस्टा। क्या ऐसे जो फीचर है जो इनमें नहीं है, इसकी वजह से यूनिक हो जाते हैं, जो बाकी किंगडम में है, प्लांटे में भी है, फंगाई में भी है,
और मोनेरा में भी है। तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है? यू गाइस एबल टू हियर मी विद द हेडफोन नाउ? Yes, sir. श्योर? पक्का ठीक से आ रहा है? Yes, sir. यस, ओके। चलो, डू यू गाइस हैव एन आंसर या मैं बताऊं आंसर क्या है उसको? किसी को अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है? नहीं, आंसर क्या मालूम है? सेल वॉल। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। ओके, प्रोटिस्टा में भी, नॉट ऑल, बट देयर आर मेनी प्रोटिस्टा, मेनी मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हु डू नॉट हैव सेल वॉल, लेकिन थोड़े बहुत हैं। लेकिन एनिमल्स में किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, नो सेल वॉल एट ऑल, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी यूनिक टू देम, बिकॉज एनिमल किंगडम में सारे सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है, प्रोटिस्टा में तो एटलीस्ट किसी किसी के पास है। एनिमल सेल्स मल्टीसेलर होने के बावजूद सेल्स डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, जबकि फंगल सेल्स हैव सेल वॉल, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल्स हैव सेल वॉल। समझा? ऐसे ये 5 किंगडम्स है जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। व्हाट वी विल डू इज दैट, ओके, वी हैव गॉट अबाउट हाफ द लेक्चर इज डन, हाफ द लेक्चर रिमेनिंग। 12:45 के आसपास हो गया है, 1:30 तक हमारे पास टाइम है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू ओपन अप द असाइनमेंट, आई एम गोइंग टू ओपन अप द असाइनमेंट ऑफ लास्ट टाइम, और उसमें जो मैंने तुम लोग को क्वेश्चंस पूछे थे आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू अपॉर्चुनिटी टू आंसर, तो प्लीज फील फ्री टू आंसर। आकृति, तू लास्ट टाइम शायद लेक्चर में नहीं थी तो तूने ये देखा नहीं है, तो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आकृति, तो तू भी वो क्वेश्चंस देख पाएगी। और वो क्वेश्चंस देखने के बाद आकृति, इफ यू आर एबल टू गेट द आंसर हियर इटसेल्फ, तुझे अभी ही अगर आंसर उसका आ रहा है तो तू बता दे, ऐसा कुछ नहीं है कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, तो तू भी आंसर कर ले। इफ यू नो देन डेफिनेटली गो अहेड एंड आंसर। ओके, एक बार ये असाइनमेंट जो मैंने शेयर किया था लास्ट टाइम वो तुम्हारे साथ डिस्कस हो गया, then we can move towards a small part of the chapter which is the basic features of cell और शायद सेल थियरी। अगर नहीं हुआ तो हम लोग ये हफ्ते में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है तभी कर लेंगे। आई थिंक तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे साथ ये हफ्ते में आई थिंक इज ऑन सैटरडे डायरेक्टली, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे साथ सैटरडे को रहेगा मेरा, तो तभी डिस्कस कर लेंगे सेल के बारे में और सेल थियरी के बारे में। और एंड प्लस मैं आज तुम्हारे साथ शायद और एक असाइनमेंट शेयर कर लूंगा, तो उसके बारे में भी तुम क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ के रख सकते हो। ओके, अभी तुम्हारा ओके दिमाग बायोलॉजी में कैसे चलने चालू होना चाहिए ना, ये अभी मैं तुम लोग को धीरे धीरे गाइड करूंगा ऑन हाउ यू शुड एबल टू थिंक, कैसे डीपली थिंक करने का अबाउट ईच टॉपिक, ट्राई टू फाइंड आउट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और रिटेन करने का अपने हेड में, तो वो यूजफुल है तुम्हारे लिए। फाइन, बट बिफोर वी गो अहेड, ओके आकृति, कैन वी हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू? ओके, हम लोग ने सबके साथ ये इंट्रोडक्शन किया, आई डू दिस विद एवरीवन, एंड तुम्हारे पहले भी जो 2 बैचेस अभी उड़ान में बने हैं बायो के, नीट के, उनके साथ भी सब लोग के साथ मैंने ऐसा किया। So we would really like to know you a little bit better. So if you can start your video for 2 minutes, just for 2 minutes, okay, all of us are able to see you, and we want very basic information from you. We want your full name, we want which school you are from, we want to know, all of us want to know, even me, okay, that what are you interested in, okay, मतलब 2023 में तुम नीट दोगे तो तुम purely नीट focused हो क्या, okay, and what do you want to do, okay, what do you want to achieve, क्या है तुम्हारे दिमाग में, okay, as of now क्या goals बनाए तुमने तुम्हारे लिए, okay, academically, and the fourth thing that we want to know from you is what are your passions and hobbies, मतलब जब तुम you're not studying और academically तुम इतना ये नहीं हो, मतलब पढ़ाई नहीं करते हो, तब okay, what all do you do, okay, let us see, maybe, okay, कुछ नेटवर्क इशू लगता है, but she'll be back, right, okay, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। so can I share the screen and let us go to that assignment, okay, assignment डिस्कस करने के बाद वक्त बचा, then we'll go and we'll look at some features of cell, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में देख सकते हैं। so I'm going to share the screen now, right, okay, शेयर करते हैं स्क्रीन को यहाँ पे, right, और ये है हमारा असाइनमेंट नंबर 1। Are you guys able to see? Yes, sir. दिशा, आर्या, Yes, आभा, sir. प्राजक्ता, निकिता दिख रहा है सब लोग को, राइट, Yes, ओके, sir. यही तुम्हारे साथ मैंने शेयर किया था लास्ट टाइम, और ओके तुम्हारे गूगल क्लासरूम या ग्रुप पे भी डाला था, ओके, सो लेट अस सी। so now you know which questions we are going to discuss, 1 2 3 4, then you have got 7, and then you have got 10, ये questions है, right, so let us see, okay, किसके पास, एक एक करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन का है किसी के पास आंसर, ओके, आप हाथ रेज करो, यू नो हाउ टू रेज योर हैंड ना, तुम्हारे पास वो आइकन है हैंड रेज करने के लिए, तो एक बार तुम हैंड रेज कर दोगे तुम्हारे ओके टाइल में या बॉक्स में, तो मुझे पता चलेगा यू वांट टू आंसर, एंड देन आई कैन आस्क यू अकॉर्डिंगली। तो पहला वाला क्वेश्चन, ओके, किसी को कुछ मिला, डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडी, वेरी गुड, आभा ने उसका हैंड रेज किया है।
So very happy. बोला बा. Sir, antibody are like they are proteins produced by immune system to stop बहुत अच्छा. substances that harms body. Very And good. antibiotics is a substance produced by one microorganism that inhibits the growth of harmful substance. क्या बात है, वेरी नाइस. कितना अच्छा आंसर दिया. ओके, फैंटास्टिक आंसर. ओके, एंटीबॉडी इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, कंपाउंड मॉलिक्यूल है. इज एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड प्रोटीन जहां पे प्रोटीन इज कंबाइंड विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और ये एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है ना वो बनाते हैं. जैसे हमारे इम्यून सिस्टम में ओके ब्लड के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी जो इम्यून सेल्स हैं उसमें दो टाइप्स हैं. ओके, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट. ओके, और ए ग्रैन्युलोसाइट में देयर इज अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट. वो लिम्फोसाइट में भी दो टाइप्स है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. उसमें जो बी लिम्फोसाइट है, बी कैपिटल बी, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. उसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हुआ, डस्ट, जर्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी, एनीवन हैज एंटर्ड थ्रू एयर, थ्रू फूड, थ्रू ओके इन्फेक्शन और व्हाटएवर, किसी भी चीज से ओके एंटर हो गया, then antibodies are produced against each and every foreign object. each and every, हर फॉरेन ऑब्जेक्ट के लिए अलग एंटीबॉडी, और हर फॉरेन ऑब्जेक्ट के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं बी सेल्स. और ये एंटीबॉडीज जाके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करते हैं, उनको इमोबिलाइज कर देते हैं. ओके, और उनके टॉक्सिन्स वगैरह को न्यूट्रलाइज करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट ओके फ्रॉम इन्फेक्शंस. दे आल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा सिस्टम मैन्युफैक्चर करता है. एंटीबायोटिक जैसे आभा ने एक्सप्लेन किया, एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड एंटीबायोस. एंटीबायोस का मतलब है अगेंस्ट लाइफ. एंटीबायोस अगेंस्ट लाइफ, उसका मतलब है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दैट वी ईट, जैसे पेनिसिलिन है या ओके एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब है, ये हम लोग को कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म से मिले हैं. जैसे पेनिसिलियम करके फंगस है, पेनिसिलियम ये जीनस है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम ये पूरा उसका नाम है. ओके, ये जो है ओके दिस फंगस makes this molecule called penicillin. वो अपने लिए बनाता है. Why? It is trying to protect itself from attack by other organisms. But we know that this molecule is very important for us as humans also. So we grow penicillium, okay, in laboratories or wherever. और वहां से ही हम लोग ये penicillin extract करते हैं, उनको purify करके हम लोग use करते हैं. Why? Because it is going to help us protect us also from other organisms. That is why. Okay. जैसे तुम्हारे पास एरिथ्रोमाइसिन है, तो एरिथ्रोमाइसिन एक दूसरा बैक्टीरिया बनाता है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये दूसरा ओके बैक्टीरिया बनाता है. अब ये बैक्टीरिया ये मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है? अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन यह बैक्टीरिया को हम लोग लेबोरेटरीज में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मास स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, तो उनसे एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके बेचते हैं. तो एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड वी यूज इट कमर्शियली एज मेडिसिन. ओके, डायग्नोस्टिक्स और थेरेपेटिक्स में इसको हम लोग यूजुअली थेरेपेटिक्स में यूज करते हैं. ओके, ट्रीटमेंट के लिए. एंटीबॉडी ह्यूमंस का ओके ह्यूमन से एनिमल्स के बॉडीज खुद ही बनाते हैं टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ओके अटैक बाय फॉरेन एजेंट्स व्हिच कुड बी बैक्टीरिया और वायरसेस और व्हाटएवर. ओके, तो ये डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीबायोटिक है. ओके, दैट इज ओके, वेरी गुड. सो आई एम वेरी हैप्पी. इफ एनीवन एल्स इज एनी मोर पॉइंट, हो सकता है कि ऐसे डिस्कशन में मैं कोई पॉइंट मिस कर दूं या बताऊं नहीं. सो इफ यू हैव सम एडिशनल पॉइंट अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और टॉपिक, देन प्लीज लेट मी नो. ओके, okay, don't hesitate. You can raise your hand. You can tell me, sir, इसके बारे में और एक पॉइंट है मेरे पास. वैसे चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. आर सम बैक्टीरिया यूजफुल और आर ऑल बैक्टीरिया हार्मफुल? किसके पास इंफॉर्मेशन है? हु हैज दिस इंफॉर्मेशन? लेट अस नो. दिशा के पास है. वेरी गुड. बोल दिशा. Sir, no. नो मतलब आर दे ऑल हार्मफुल? नो. कि आर सम बैक्टीरिया यूजफुल, उसका आंसर तूने नो बोला. किसका आंसर तूने नो बोला? दिशा. हेलो, तेरा आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है, वापस से ट्राई कर. Yes, sir. बोल. Some bacteria are not harmful. We use some bacteria in day-to-day life to create food like yeast, yogurt, pickle, soya sauce and all. So some of them are not harmful. Yes, so all of them are not harmful.
सम ऑफ देम आर यूजफुल, जैसे दिशा ने बोला हम लोग उनसे अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि कोई कोई फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, so some bacteria also help in fermentation, okay, जैसे कि okay curd, out of the food products that Disha said I can use curd because शायद दूसरे कोई फर्मेंटेशन में यीस्ट ये ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं। यीस्ट किसको बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा को। बैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा, दोनों की किंगडम से अलग है। तो जैसे कर्ड है, तो अभी कर्ड में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन कर्ड? सो बेसिकली वी टेक अ वेसल कंटेनिंग मिल्क, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने बॉईल किया है और अभी वो थोड़ा लूक वार्म है, ओके, बिकॉज बेस्ट कर्ड बनाने के लिए वो टेम्परेचर हम लोग को देखना पड़ता है। और फिर तुमने क्या किया? एग्जिस्टिंग कर्ड में से तुमने एक स्पून लिया और वो मिल्क के अंदर तुमने पूरा अच्छी तरह से मिक्स किया। तो एग्जिस्टिंग कर्ड में क्या है? एग्जिस्टिंग कर्ड में तुम्हारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीनस है, उसमें बहुत सारे स्पीशीज यूज होते हैं, ओके, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ओके, दे विल यूज द लैक्टोज इन द मिल्क। उनका खाना क्या है? उनका खाना है मिल्क के अंदर प्रेजेंट हुआ शुगर। मिल्क के अंदर शुगर कौन सा होता है? लैक्टोज। तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज करते हैं और लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, और लैक्टिक एसिड के साथ दे प्रोड्यूस अनदर एंजाइम कॉल्ड एज रेनिन। और ये जो रेनिन है वो क्या करता है? मिल्क के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसको पूरा कोएगुलेट कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। ओके, मिल्क के अंदर शुगर है लैक्टोज, मिल्क के अंदर प्रोटीन का नाम है केजिन, CAESIN। तो सारा प्रोटीन या केजिन को वो लोग साइड में कर देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, और बाजू में थोड़ा सा एक फ्लूइड निकलता है येलो कलर का, उसको बोलते हैं वे। तो वो मिल्क को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, इनटू द प्रोटीन और दूसरा वाला कंपोनेंट वे के अंदर भी थोड़े प्रोटीन है और थोड़े विटामिन है और पानी वाला कंपोनेंट है। और ये जो निकला कोएगुलेट हो गया प्रोटीन इज नथिंग बट योर कर्ड और योगर्ट। योगर्ट बनाने के लिए बैक्टीरिया अलग होता है, कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिला है। ऐसे बहुत सारे हमको फूड प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया से मिलते हैं। ओके, हम लोग को बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, जिसे अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से मिलते हैं। ओके, और उसके अलावा बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा यूजफुल है, वेरी वेरी यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम हमारा ह्यूमन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं और बैक्टीरिया से हम लोग के कोई कोई प्रोडक्ट्स बना के ले सकते हैं, जैसे कि आजकल जो कमर्शियली इंसुलिन मिलता है, राइट। सो पीपल हु हैव गॉट अ हायर क्रॉनिक डायबिटीज है, थोड़ा उनका शुगर का लेवल काफी हाई है, ओके, टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, वो हाई है उनका, ओके, और उनको रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने हैं। तो इंसुलिन को तुम लोग बनाओगे कहाँ से? वे विल गेट द इंसुलिन। तो साइंटिस्ट ने अभी आगे बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है। सो व्हाट हैव डन इज दैट ह्यूमंस का जो इंसुलिन का जीन है, हमारे में इंसुलिन कहाँ पे बनता है? पैनक्रियास, हमारे पास एक ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास में भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स इनको बोलते हैं बीटा सेल्स। तो पैनक्रियास के बीटा सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसमें जो इंसुलिन का जीन है उसको निकाला है और उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया है, एंड नाउ बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। ओके, और बैक्टीरिया बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर्स में ग्रो करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से थोड़े लेस अमाउंट ऑफ टाइम में यू कैन गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम देम। फिर इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अच्छे से प्यूरिफाई करते हैं और फिर पैकेज करके सेल कर देते हैं। ओके, तो ऐसे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो भी हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 12th में हमारे पास 2 बड़े चैप्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी के, राइट। तो ऐसा बहुत सारा उसका मल्टीपल यूजेस है, हार्मफुल भी है, बट ओके, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ बैक्टीरिया एज वेल। ओके, फैंटास्टिक। So we've got 2 questions cleared. Okay, cover हो गया हमारा। Let us go to the third one. Okay, third वाला question. Let us see who wants to answer. कौन आंसर कर सकता है? What or who gives green color to most leaves? Okay, आबा ने उसका हैंड रेज किया है, दिशा ने भी रेज किया। I'm going to talk to both of them. पहले आबा ने रेज किया, तो हम लोग वो सीक्वेंस में जाते हैं। बोल आबा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोल। Sir, the answer is chlorophyll. It is responsible to give the leaves green color and also responsible for the photosynthesis of plants. फैंटास्टिक। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए भी जरूरी है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है प्लांट के लीव्स के लिए। परफेक्ट, ब्यूटीफुल आंसर, वेरी करेक्ट आंसर आबा। सो फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। लेट विल सी व्हाट दिशा हैज टू से। प्रॉब्ली उसके पास कुछ एडिशनल पॉइंट है क्या? दिशा, तू कुछ अलग बोलने वाली थी? No, sir, same answer. सेम आंसर है दिशा का भी और आबा का। दैट क्लोरोफिल ये जो मॉलिक्यूल है ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, कलर भी देते हैं। तो मुझको बताओ, कलर देने वाले मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? डज एनीवन नो? आंसर पी से शुरू होता है, पी। Pigment. वेरी गुड, पिगमेंट। वेल डन निकेता। द आंसर इज पिगमेंट। उसका मतलब क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। पिगमेंट 2 तरीके के रहते हैं। कोई पिगमेंट जो होते हैं सिर्फ कलर देते हैं, जैसे चिली
चिली को रेड कलर देने वाला पिगमेंट, टमेटो को रेड कलर देने वाला पिगमेंट, उसका नाम है लाइकोपीन. लाइकोपीन इज अ टाइप ऑफ अ रेड कलर्ड पिगमेंट. ओके, लेकिन वो सिर्फ कलर देता है और कुछ भी नहीं करता है. लेकिन क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो कलर भी देता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. इसके लिए ऐसे पिगमेंट्स को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं. तो क्लोरोफिल इज अ एग्जांपल ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. क्लोरोफिल इज अ एग्जांपल ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. एंड लाइकोपीन जैसे पिगमेंट्स है आर नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो पिगमेंट्स को तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप्स में. ओके, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, कलर भी देते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. एंड सिर्फ कलर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. राइट. तो क्लोरोफिल मोस्ट, ओके, क्लोरोफिल के अलावा बहुत सारे पिगमेंट्स हैं. एक्चुअली क्लोरोफिल इज अ क्लास ऑफ पिगमेंट्स एंड देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई. एंड बैक्टीरिया में, मैंने बोला था ना, मोनेरा में भी बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें दो अलग टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन. ये 7 टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स हैं. ये एक क्लास ऑफ पिगमेंट्स है. दूसरा क्लास ऑफ पिगमेंट्स है, उसको बोलते हैं कैरोटीन. उनको बोलते हैं कैरोटीन. सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ कैरोटीन इज सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन. ये तुम्हारे ऑरेंज में रहता है. ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट है. तो हमारे जो ऑरेंजेस हैं उसमें ये बीटा कैरोटीन रहता है. सॉरी. उसके अलावा पपाया है, ओके, इसमें ये बीटा कैरोटीन रहता है. उसके अलावा फिर ओके, पपाया है, ऑरेंज है, कैरेट है, ओके, इसमें बीटा कैरोटीन रहता है. एंड दिस बीटा कैरोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it can lead to the formation of vitamin A, and vitamin A is very required for good eyesight. Okay, हमारे अंदर आईज के अंदर दो तरीके के न्यूरॉन्स हैं, एक को रॉड्स बोलते हैं, एक को कोन्स बोलते हैं. उनके डेवलपमेंट में ओके विटामिन ए रिलेटेड मॉलिक्यूल लगता है एंड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन से प्रोविटामिन ए, प्रोविटामिन से विटामिन ए, विटामिन ए से रेटिनॉल जो लगता है रॉड्स एंड कोन्स में. ऐसा वो पूरा प्रोसेस है. लेकिन दैट इज व्हाई दे से दैट ऐसे सब चीजें खाएंगे, ओके, पपाया है, कैरेट है, ओके, तो इट इज गुड फॉर आईसाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट बीटा कैरोटीन. तो ये एक तो कैरोटीन्स करके एक ग्रुप है जिसमें बीटा कैरोटीन है. फिर एक ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन्स के अंदर ही ज़ैंथोफिल करके ग्रुप आता है. ये येलो कलर का देता है पिगमेंट. so xanthophylls they give okay yellow color का yellow color. these are also okay photosynthetic pigment. और photosynthetic pigments में एक तीसरा क्लास है, तीसरा ग्रुप है which are called phycobilins. इसमें कोई कोई रेड कलर देते हैं, कोई कोई ब्लू कलर देते हैं. तो ये मेजर क्लासेस ऑफ photosynthetic pigment है. लाइकोपीन ये सिर्फ कलर देते हैं, जैसे एंथोसायनिन पर्पल कलर देता है, जैसे ऑर्किड को कलर देगा, और लाइकोपीन रेड कलर देगा टोमेटोज को या एप्पल के ओके जो स्किन है उसको, तो ये रेड कलर देगा वैसा. सो दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो ये तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन का तुमने आंसर दे दिया. बट मुझको बताओ व्हाई डज क्लोरोफिल गिव ग्रीन कलर ओनली? मतलब क्या क्लोरोफिल खुद ग्रीन कलर का है? इज क्लोरोफिल इटसेल्फ मॉलिक्यूल ग्रीन इन कलर? तो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए लीव्स को ग्रीन कलर आता है. और अगर ऐसा ट्रू है तो एक ही लीव का दो सरफेसेस में, एक ही लीव के दो सरफेसेस में ग्रीन कलर में वेरिएशन क्यों है? तो क्लोरोफिल अगर लीफ में प्रेजेंट है तो पूरा लीफ सेम ग्रीन कलर का होना चाहिए. बट इफ यू टर्न एंड लुक एट द वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड यू विल फाइंड दैट द कलर इज डिफरेंट. ग्रीन का शेड अलग है. ऐसा क्यों? बोल दिशा, तो कुछ बोल रही थी. Sir, because they do not absorb the green wavelength of white light. Exactly, they give out the green wavelength of white light. ग्रीन वेवलेंथ गिव आउट करते हैं, दे गिव आउट द ग्रीन वेवलेंथ. उसका मतलब क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल ब्लू व्हाइट लाइट में, ओके, तुमको मालूम है ना 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इनको विब्ग्योर बोलते हैं. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. बराबर है. तो व्हाट डू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स डू? दे अब्सॉर्ब द ब्लू एंड रेड कलर वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट के अंदर जो ब्लू और रेड कलर के वेवलेंथ है उनको वो स्पेसिफिकली अब्सॉर्ब करते हैं, बस वही. एंड दे गिव आउट ग्रीन कलर का लाइट. नाउ ग्रीन कलर का जो जोन है वो बड़ा है, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ आते हैं. तो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और दूसरे पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली ग्रीन कलर के शेड का वेरिएशन आता है. तो ग्रीन कलर का जो पूरा जोन है विजिबल स्पेक्ट्रम में वो थोड़ा सा बड़ा है, और उसमें अलग अलग ग्रीन कलर के वेवलेंथ अगर बाहर निकलेंगे तो अलग अलग ग्रीन कलर के शेड्स हम लोग को दिख सकते हैं. मतलब वो लाइट हमारे रेटिना पे गिरेगा, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट गिरेगा तो हम लोग को अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन परसीव हो जाएंगे. इसके लिए वी सी दैट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स show different shades of green, okay,
and their ventral and dorsal surfaces are also okay different shades of green. Why? Reason क्या है that even though वो photosynthesis के वक्त chlorophyll का molecule green color का wavelength emit कर रहा है, green color का zone बड़ा होता है, तो थोड़ा सा भी वेरिएशन में 1 नैनोमीटर का 0.5 नैनोमीटर का भी वेरिएशन हो जाएगा, तो शेड में डिफरेंस आ जाता है. तो सारे wavelengths are coming out in the green zone only of the visible spectrum, but okay, they are not the exact same wavelength. थोड़ा सा वेरिएशन है wavelength में, and that is why we see variation in the shade of green. Okay, but all the wavelengths are coming out only in the green zone, and that is why we see the leaves as green color. Chlorophyll by itself is not a proper green color pigment. Bluish green, yellowish green, grass green, bottle green, ऐसे उसके अलग अलग color. तो chlorophyll by itself, okay, is a different shade molecule, but because वो light green zone में emit करता है, इसके लिए हम लोग को leaves green color के दिखते हैं. Okay, बहुत ही simple है. जैसे कि पीछे, okay, ये मेरे पीछे जो wall है, okay, if you see very closely, थोड़ा सा ऐसा लाइटिश ग्रीन कलर है, पिस्ता ग्रीन, ऐसा बहुत ही लाइट ग्रीन कलर है, बराबर है. बट ओके, मेरा ये जो टी शर्ट है यहाँ पे, ये ग्रे कलर का है. तो तुम लोग मुझको देख रहे हो ओके स्क्रीन पे, तो यू आर एबल टू सी दिस एज वेरी लाइटिश ग्रीन इन कलर एंड यू कैन सी माई टी शर्ट एज ग्रे इन कलर. ऐसा क्यों है? व्हाई इज दैट? ओके, इट्स वेरी सिंपल. मेरे घर पे रूम में जो लाइट गिर रहा है, नेचुरल सनलाइट गिर रहा है या ट्यूबलाइट का जो लाइट गिर रहा है, दैट इज फॉलिंग ऑन द वॉल. ऑन द वॉल पे लाइट गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस वेवलेंथ, जिस नैनोमीटर का लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है, वो जब तुम्हारे रेटिना पे गिरता है तो रेटिना परसीव करता है कि यार ये तो लाइटिश शेड ऑफ ग्रीन है और इसके लिए तुमको ये कलर दिखता है. बट व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन माय टी शर्ट एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, मेरे टी शर्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ये वेवलेंथ से अलग है. इट इज बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रेंज, नैनोमीटर उसका अलग है. एंड ये नैनोमीटर का लाइट जब रेटिना के ऊपर गिरता है, हमारा रेटिना परसीव कर सकता है कि ये कलर कौन सा है. इसके लिए हम लोग को कलर में वेरिएशन दिखता है. तो लीव्स के ऊपर लाइट, जब सनलाइट गिरता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थोड़ा ऑब्जॉर्व करके बाकी का जब रिफ्लेक्ट बैक करता है, ओके, तो इट रिफ्लेक्ट्स ओनली इन द ग्रीन जोन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड दैट इज व्हाई वी सी द लीव्स एज ग्रीन इन कलर. लेकिन ग्रीन जोन में थोड़ा नैनोमीटर में वेरिएशन होने की वजह से हम लोग को अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन दिखते हैं. ओके, इज इट क्लियर? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? सब लोग को समझा? हाँ कि नहीं? यस, आर्या, निकिता, दिशा, अबा, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, Yes. फैंटास्टिक. आगे बढ़ते हैं. राइट, फोर्थ, डू यू नो ओके हु इज लुविनहॉक? डज एनीवन नो? कौन कर रहा है आंसर? लुविनहॉक के बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन कुछ निकाला क्या? डच साइंटिस्ट थे एंटन वॉन लुविनहॉक, जिन्होंने सबसे पहली बार क्या किया? लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्क्राइब किया, लेकिन वो लिविंग नहीं था. लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, लिविंग सेल का डायग्राम बनाया, एक नहीं मल्टीपल डायग्राम्स बनाए और उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया सबसे पहली बार, वाज एंटन वॉन लुविनहॉक. ओके, दिशा तूने हैंड रेस किया है, तू कुछ बताना चाहती है, बोल. Sir, Leeuwenhoek was the father of microbiology. फैंटास्टिक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला डायग्राम और डिस्क्रिप्शन उन्होंने ड्रॉ करके बताया. ओके, उस वक्त पे. वेरी गुड, सो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. बहुत अच्छा. और कुछ? And sir, he was a businessman, Dutch businessman and scientist as well. Yes, he was a businessman and scientist. और उनको ना ग्लास का लेंस बनाने को आता था. He could make glass lenses. तो उनके पहले, काफी पहले, ओके, 1590 में सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जैनसन, दो जैनसन ब्रदर्स थे, उन्होंने डिवाइस किया. फिर 1590 से लेकर 1600 आया. लेट 1600 में 1672 1674 के आसपास काफी साल काम करने के बाद, ओके, एंटन वॉन लुविनहॉक, ही कुड डेवलप न्यू ग्लास लेंसेज. और नए ग्लास लेंसेज को माइक्रोस्कोप पे प्लेस करने की वजह से ही कुड इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, ओके, 270 टाइम्स. ओके, माइक्रोस्कोपी में मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स. तो 10x का मतलब है यू आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स मैग्निफाइड. 100x का मतलब है यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट 100 टाइम्स मैग्निफाइड. बराबर है. 270x का मतलब है यू आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट 270 टाइम्स मैग्निफाइड, तो और क्लियरली दिख सकता है. सो एंटन वॉन लुविनहॉक अचीव्ड द मैक्सिमम, ओके, magnification in his microscopes of 270x, and that is why he could see so many cells, unicellular organisms clearly. उन्हें उनको डिस्क्राइब किया, उन्होंने अच्छे डायग्राम्स बनाए जो पब्लिश हुए हैं उनके बुक्स में. ओके, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ, ओके,
microbiology because he gave so much information about unicellular organisms, most of which were okay bacteria. लेकिन कोई animal cell, plant cell के बारे में उन्होंने information दिया. Okay, but great scientist. Okay, first person to actually draw and describe a living cell, Anton von Leeuwenhoek. Fantastic. Okay, और अगर किसी को कुछ information रहेगा तो share कर सकते हो. Okay, otherwise we can go ahead. Okay, question 5, question 6 आगे देखेंगे. Question 6 सेल थियरी के बारे में. जैसे मैंने बोला ना, सेल थियरी के 3 साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट मिलता है सेल थियरी का, मैथियास क्लाइडन, थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ वर्चर. लेकिन वो हम लोग बाद में देख सकते हैं. विल सी इफ यू आर एबल टू डिस्कस सेल थियरी टुडे. अगर नहीं कर पा रहे हम लोग सेल थियरी डिस्कस, तो हम लोग अगले बार करेंगे. ओके, ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 7. आई वांट यू गाइस टू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ सेल्स एंड व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म. फिर वो सेल प्लांट सेल हो, फिर वो सेल बैक्टीरियल सेल हो, फिर वो यीस्ट है, यूनिसेलुलर यीस्ट है, या फिर एनिमल सेल, कोई भी हो. गिव मी different cells because you will not even believe how many different cells के बारे में we are going to talk over a period of these 2 years. तुम्हारे बायोलॉजी सिलेबस में बहुत अलग अलग सेल्स के बारे में बात करेंगे, टिश्यूज के बारे में बात करेंगे. बट लेट मी सी कि तुम लोग को बेसिक कितना इन्फॉर्मेशन मालूम है. दिशा, तूने अभी वापस हाथ रेस किया क्या, कि वो पहले का ही है? So it was first. तो ये इसके बारे में तेरे को कुछ मालूम है थोड़ा, सेल्स के बारे में है तेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन? अगर है तो बता. So they provide structure for the body, and they take in nutrients into energy and carry out specialized functions. सेल्स स्पेशलाइज फंक्शंस करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को लेके यूज करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर दे देते हैं. और ओके, वेरियस also मेटाबॉलिक contain- रिएक्शंस दे कंट्रोल. They contains hereditary materials of body. सेल कंट्रोल होता है थ्रू द जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल. वो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दिस आर ऑल करेक्ट आंसर्स बाय द वे दिशा. दिस आर परफेक्टली फैंटास्टिक एंड करेक्ट आंसर्स अबाउट व्हाट अ सेल कैन डू. एक सेल के फंक्शन क्या है, ओके, उसके बारे में परफेक्ट है. लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था. मेरा क्वेश्चन ये था, आई वाज ट्राइंग टू आस्क यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड व्हाट डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म. मतलब जैसे दिशा तूने आंसर किया ना कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो हेरिडिटरी मटेरियल है, कंट्रोलिंग सेंटर है. सेल न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेता है, सेल मेटाबॉलिक अलग अलग रिएक्शंस करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर छोड़ता है, सेल ग्रो करता है, सेल डिवीजन करता है. ये सब ना फंक्शंस आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ द सेल्स. समझे दिशा तू, राइट? तो ये सारे सेल्स के कॉमन फंक्शंस है, मतलब सेल ये फंक्शन करेगा ही. योर आंसर इज परफेक्टली राइट in terms of what are the functions of a cell. Perfect. All the cells do this function, but my question is a little bit different. I want you to tell me specific cell क्या अलग function करता है. मतलब if I give you an example of a cell, मैं cell का नाम बोलता हूँ and you try to think कि ये cell क्या function करता रहेगा. उसको ये भी बताओ कि मैं जो सेल के बारे में बात कर रहा हूँ वो ह्यूमन बॉडी में किधर प्रेजेंट है, विच पार्ट, विच ऑर्गन. सेल का नाम है नेफ्रॉन. सेल का नाम क्या है? नेफ्रॉन. NEPHRON. NEPHRON, नेफ्रॉन. सुना है तुमने नेफ्रॉन के बारे में? NEPHRON, नेफ्रॉन. आभा, दिशा, निकिता, आर्या, anyone else? Have you heard about nephron? नहीं. Nephron is a cell or the most fundamental cell of the kidney. बराबर है. और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या ओके, ये उसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये जो फंक्शन है ये नेफ्रॉन का फंक्शन है. ऐसा मुझको चाहिए. You understand? This is what I want. I'll give you one more. Okay? Same. I will tell you the name of the cell. You can think. पहले तुमने सुना रहेगा, I think so. You can think where this cell is present in which part, which organ of the body, and what function does it do. सेल का नाम है न्यूरॉन. अभी बोला था नेफ्रॉन, अभी क्या बोल रहा हूँ? न्यूरॉन. सेल का नाम है NEURON, न्यूरॉन. सोचो. दिशा, तेरा आंसर करके हो गया तो हैंड नीचे कर देना, सो आई नो कि तेरा पिछला क्वेश्चन का तूने ये कर दिया है. फिर नया क्वेश्चन तुझको वापस आंसर करना है, वापस हाथ रेस कर लेना. तो आई थिंक तुझे आंसर देना है दिशा, तो बोल.
Sir, it is a fundamental system of brain nerve system. Brain मतलब ब्रेन nerves. और नर्वस टिश्यू का सेल है, बराबर दिशा? So neuron is the Yes, sir. fundamental cell of the nervous system, brain tissue. बराबर, very good. आभा ने भी हाथ रेस किया था. Let me see what आभा had to say. बोलो आभा. Sir, I just wanted to say that it is a neuron. Neuron is a nerve cell that A nerve is made up of communicates. neurons. ऐसे बोल सकते हैं. A nerve is made up of neurons. तो Yes. एक जो नर्व है, it can be made up of one neuron or it could be made up of a collection of neurons. Depend करता है कितना लंबा नर्व है. लेकिन you are right. न्यूरॉन नर्व के अंदर रहता है, नर्व के अंदर रहता है, और इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस, ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू. और कुछ बोल रही थी अब? Sir, it also communicates with other cells. ये उसका फंक्शन है. दैट न्यूरॉन्स पास स्टिमुलस और सिग्नल. न्यूरॉन्स स्टिमुलस या सिग्नल पास करने में हेल्प करते हैं. ओके, दे हेल्प इन पासिंग इंपल्स और स्टिमुलस और सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. ओके, वन एंड टू द अदर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं. एक जो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टू डिसीजन मेकिंग ऑर्गन. वो द डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये 2 डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है. तो इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले न्यूरॉन्स को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. क्या बोलते हैं? सेंसरी. समझा? दूसरा न्यूरॉन वो है जो डिसीजन लेगा कि व्हाट विल यू डू, विल यू टॉक, विल यू वेव योर हैंड, विल यू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, will you cross the road, will you, which vegetable do you buy, what is the correct price. ये डिसीजन मेकिंग जो है वो न्यूरॉन को बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन. वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है. ओके, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स हैं, दे आर कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ये डिसीजन मेकिंग है. एंड डिसीजन लेने के बाद ओके, इफेक्टर ऑर्गन तक जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन. तो फॉर एग्जांपल, इफ यू सी योर फ्रेंड ऑन द रोड, ओके, एंड ओके यू वेव योर हैंड, तो तुमने उसको देखा है, तो तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लेके गया ब्रेन के पास. ब्रेन में वो प्रोसेस हुआ कि ये कौन पर्सन है, अरे पहचान वाला है, हाई करना जरूरी है. ये डिसीजन हुआ. लेकिन हाई करने के लिए ओके, यू इधर हैव टू कॉल आउट हिज नेम और यू हैव टू वेव. तो उसका नाम पुकारने के लिए यहाँ पे जो हेड एंड नेक, फेस, माउथ के मसल्स इन्वॉल्व है, या हैंड वेव करने के लिए बोन मसल्स इन्वॉल्व है वेव करने के लिए, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन लेके आया वो सारे न्यूरॉन्स को बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन्स. उनको बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन्स. ओके, तो ऐसे ही अलग अलग टाइप ऑफ, और भी है. आईज में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. ओके, बाकी सो दीज आर ऑल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके, ये न्यूरॉन्स है, तो उसका फंक्शन हो गया. ओके, सेंसरी है, इफेक्टर है, एसोसिएशन है, वैसा. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक एट. ये 2 एनिमल्स हमने बात किए. अभी मैं 2 प्लांट के सेल्स तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ. क्यों? ताकि तुम ऐसे नाउ यूजिंग दिस लाइन ऑफ थिंकिंग यू विल फाइंड मोर इंफॉर्मेशन. ओके, बिकॉज दिशा ने जो बोला था वो परफेक्ट था. उसने सेल के बेसिक फंक्शंस बताए. फैंटास्टिक है. वो हम लोग फीचर्स में आगे देखने भी वाले हैं. बट आई वांट यू गाइस टू टेल मी स्पेसिफिक सेल टाइप्स एंड व्हाट स्पेसिफिक फंक्शंस डू द सेल्स डू. ओके, 2 प्लांट का डिस्कस करते हैं, फिर आगे जाएंगे. देन यू हैव टू टॉक अबाउट क्वेश्चन 10. ओके, और फिर मे बी अगर वक्त बचा देन वी हैव अ लुक एट सम फीचर्स ऑफ सेल, या फिर अगले लेक्चर में करेंगे. आई विल आल्सो शो यू द नेक्स्ट असाइनमेंट. ओके, और नेक्स्ट असाइनमेंट में व्हाट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व मैं बता दूंगा. क्वेश्चन नंबर लिख के रखना. एनीवेज तुम्हारे ग्रुप और गूगल क्लासरूम पे अपलोड होने वाला है, बट इट इज बेटर इफ यू राइट ड्यूरिंग द लेक्चर आल्सो. राइट, चलो. हैव यू हर्ड ऑफ अ सेल टाइप कॉल्ड वेसल? VESSEL, वेसल. VESSEL प्लांट सेल है, वेसल. तो जैसे एनिमल्स में मैंने बात किया था, वैसे यहाँ पे भी सेम 2 क्वेश्चन पूछूंगा. ये वेसल कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट में, विच पार्ट ऑफ विच ऑर्गन टिश्यू ऑफ द प्लांट, एंड व्हाट फंक्शन डज इट डू. एनिमल्स में 2 देखिए ना, प्लांट में 2 करेंगे. एक का नाम है वेसल. डज एनीवन नो वेयर वेसल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट? सोचो. No, sir. नहीं? आभा नहीं? दिशा, निकिता, आर्या? No, sir. Vessels are part of xylem. Do you know what is xylem? Or they are water conducting tissue, right? Water and mineral conducting tissue है, बराबर है. Okay, water and conducting tissue है, जो short plants है, shrubs है, bushes है, tall plants है. Okay, ये सब में माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बहुत ही छोटे, उनमें नहीं रहता है. लेकिन बाकी सारे प्लांट्स में दिस वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इज प्रेजेंट. तो वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम. ये जाइलम के अंदर 4 अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स है. जाइलम इज अ टिश्यू because it contains 4 different types of cells, but all the cells help in one function only, what? Transport या conduction of water and minerals
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। ओके, जाइलम में मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, रूट से लेके ऊपर यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है वाटर मिनरल्स। उसके अलावा भी थोड़े और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन वाटर और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। जाइलम ये टिश्यू है और उसमें 4 टाइप ऑफ सेल्स है। पहले का नाम है ट्रकीड, दूसरे का नाम है वेसल, तीसरे का नाम है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथे का नाम है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जाइल, ओके, ट्रकीड्स और वेसल्स। ट्रकीड्स और वेसल्स यूजुअली वाटर कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, वाटर मिनरल्स को कंडक्टिंग टिश्यू में हेल्प करते हैं उस फंक्शन में। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ना, वो हेल्प करते हैं कंडक्शन में, लेकिन वो ज्यादा करके फूड स्टोर करते हैं, ओके, फॉर द जाइलम टिश्यू, उसके न्यूट्रिशन के लिए। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है ना, ये स्ट्रेंथ देता है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द जाइलम। तो जाइलम का जो टिश्यू वो ब्रेक नहीं हो जाता है और प्रॉपर्ली रहता है, तो वो ओके मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऐसा टिश्यू में सेल्स और उसका फंक्शन। और एक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सीव ट्यूब, सीव, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ सीव? SIEVE, सीव। सीव का मतलब पोर्स, ओके, पोर्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं सीव, SIEVE। तो तुम सीव सेल बोल सकते हो या सीव ट्यूब बोल सकते हो, ओके। सीव सेल बोलो या सीव ट्यूब बोलो, ओके। हैव यू हर्ड अबाउट दिस, सीव सेल या सीव ट्यूब एनीवेयर इन प्लांट, राइट? मुझको बताओ, जाइलम के साथ और एक कंडक्टिंग टिश्यू रहता है, उसका नाम क्या है? प्लांट्स में along with xylem there is another conducting tissue. Do you know what is the name of that conducting tissue? P से शुरू होता है नाम, P. Phloem. Very good Nikita, answer is phloem, PHLOEM, phloem. तो अगर xylem is water and mineral conducting tissue, तो phloem क्या कंडक्ट करता है? स्कूल लेवल तक हम लोग फूड बोलते थे, लेकिन हम लोग फूड अभी नहीं बोलेंगे, वील से ऑर्गेनिक सोल्यूट। तो ऑर्गेनिक सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। प्लांट में, ओके, हायर प्लांट्स में, ओके, ये सारे जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम में ऑर्गेनिक सोल्यूट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम में मूवमेंट बाय डायरेक्शनल हो सकता है, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, तो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फ्लोएम में। फ्लोएम में ऑल्सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम इज अगेन अ टिश्यू, ऑर्गेनिक सोल्यूट कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम जैसा ही ये भी कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम जैसा ही इसमें भी 4 अलग टाइप ऑफ सेल्स है। पहले वाले सेल का नाम है सीव सेल या सीव ट्यूब, सीव सेल या सीव ट्यूब। कोई प्लांट्स में सीव सेल्स होते हैं, कोई प्लांट्स में सीव ट्यूब होते हैं, तो आगे जाके देखेंगे। ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूट को कंडक्ट करने के लिए बाय डायरेक्शन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। दूसरा वाला सेल का नाम है कंपेनियन सेल, जो सीव ट्यूब को हेल्प करता है, वो कंपेनियन सेल। और तीसरा वाला है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या करेगा? कंडक्शन के साथ फूड स्टोर करेगा न्यूट्रिशन के लिए। और चौथे वाले का नाम है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, आल्सो कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर, व्हिच इज हेल्पिंग व्हाट? गिविंग स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द फ्लोएम, राइट? तो जैसे मैंने 4 अलग अलग सेल बोले, नेफ्रॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है, वेसल क्या है, ओके, सीव सेल या सीव ट्यूब क्या है, ऐसा आई वांट यू टू फाइंड आउट मोर। आई वांट यू टू लुक एट स्पेसिफिक सेल टाइप and not what general functions they do, what specific function has been assigned to them in nature, और वो क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में I want you guys to find out more information and tell me, right? Okay, this is what I want you guys to do, okay? इससे ही तुम्हारा नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगा, राउंड, ओके, अच्छा राउंडेड इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगा, एंड अलग अलग टॉपिक्स को समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा गोइंग अहेड फॉरवर्ड, ओके, फैंटास्टिक। वी गॉट वन मोर क्वेश्चन टू डिस्कस और ये असाइनमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आई विल शो यू द नेक्स्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो, एंड आई थिंक सो सैटरडे को आई थिंक वी हैव गॉट 2 लेक्चर्स, इट इज व्हाट आई थिंक। सैटरडे आई थिंक यू हैव 2 लेक्चर्स विद मी, एक मॉर्निंग में है 8 to 10:30, 8:30 to 10, और दूसरा है 12 to 1:30। तो उस दिन हम लोग का काफी टाइम रहेगा, तो हम लोग दूसरा वाला असाइनमेंट डिस्कस करके सैटरडे को हम लोग सेल के बेसिक फीचर्स और सेल थियरी वाला पार्ट, इतना तो हम लोग आई थिंक वी शुड बी एबल टू कवर, ओके। तो उसका मतलब वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, हम लोग अच्छे पेस पे चल रहे हैं, गुड। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 10 एंड देन आई शो यू द नेक्स्ट असाइनमेंट, बराबर है? फिर ये असाइनमेंट के कोई क्वेश्चन है उनको रहने दो, ओके। ये असाइनमेंट के जो बाकी के क्वेश्चन है हम लोग लेटर ऑन कभी कर लेंगे, ओके। जो नेक्स्ट असाइनमेंट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ओके, उसके क्वेश्चन तुम लोग सैटरडे तक फाइंड आउट करके रखो। आर्या क्या पूछ रही है तू? असाइनमेंट्स डू यू नो द अदर नोटबुक? नहीं, असाइनमेंट्स में ही तुम स्टार्टिंग में चैप्टर अगर तुमने शुरू कर दिया है तो लास्ट कुछ पेजेस पे लिखो,
और अगर तुमने चैप्टर प्रॉपरली अगर शुरू नहीं किया है तो स्टार्टिंग के पेजेस में तुम लिखोगे तो चलेगा। असाइनमेंट के लिए अलग से कोई नोटबुक बनाने का जरूरत नहीं है, करंट नोटबुक में ही बनाओ। इफ यू फील कि चैप्टर स्टार्टिंग में शुरू किया है, मुझको उसको बीच में नहीं लिखना है, तो तुम लोग लास्ट फ्यू पेजेस असाइनमेंट के लिए रख सकते हो। ओके, नो न्यू नोटबुक, ठीक है आर्या, फाइन, ओके, फैंटास्टिक। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आई वांट ऑल, ओके, ईच वन ऑफ यू टू टेल मी एटलीस्ट 2 or 3 things that what you are doing right now. You understand the question, right? बहुत ही basic question है, okay? So what are you doing as an individual, okay, in this current situation? So I will start with Arya, then I'll come to Aba, then I'll talk to Disha, then I'll talk to Nikita. इस sequence में मैं जाता हूँ. So let me talk to Arya first. Arya, look at question number 10. Tell me what are you doing or what should be done as an individual to remain safe? Not only you but also your family. बोलो Arya. Myself safe. I'm using sanitizer, or while going outside, I'm using mask. Very good. I'm eating और एक point healthy. बताओ. I'm eating healthy food, not necessary to eat junk food. For our health, we need to eat healthy food, and most important, we need oxygen. Early in the morning, we need to walk at least 45 minutes. That I'm doing. Okay. राइट, तो ऑक्सीजन का लेवल्स अच्छा होना चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग यू गेट आउट, फ्रेश एयर में चलो, तो यू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द डे। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि ट्राई टू ईट एज मच एज हेल्दी फूड और होम कुक फूड, व्हाई, सो दैट यू कैन कीप योर इम्यूनिटी अप। इम्यूनिटी के लेवल्स अच्छे रखोगे तो ओके वायरस का एक्सपोजर हो जाएगा तो भी ओके जरूरी नहीं कि यू विल गेट इन्फेक्टेड, ओके, शायद मैक्सिमम हो जाएगा कि यू विल बी एसिम्प्टोमेटिक, बट ओके यू विल नॉट बी affected by it because हमारे immune levels हमने अच्छे से रखा है, okay, and most importantly hygiene, okay, और sanitation maintain करने के लिए face mask and okay sanitizer का use okay जितना हो सके करना चाहिए at least for the next few months, okay, fantastic आर्या, बहुत अच्छा आंसर दिया है, okay, let us see कि आभा, I know that some points will be common, obviously इतना सब टाइम में हम लोग ये तो जान चुके हैं, but what is something else also that can be done, okay, बोल आभा, और So कुछ कर सकते हैं इसके अलावा? हाँ, क्या इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं आभा हम लोग? so firstly, सिर्फ कभी बाहर जाने का जब जरूरत पड़े, like in case बहुत there is जरूरी है, okay, if it is important necessary then only go outside, otherwise there is हाँ. no need. Why? Because if you are asymptomatic you may spread or you may get infected unnecessarily, so okay, avoid going out if it is not required at all, at least for the next few months. Or one more thing, Ava, or then washing hands after, like with soap, sanitizer or whatever, like जो yes, भी से if you touch any object which is not part of your household, if you come from outside, okay, the first thing that you do is you wash your hands properly, okay, and ऐसे ऊपर से नहीं, okay, soap अच्छे से, okay, उसका लादर या झाग हो जाना चाहिए, and you okay try to wash your nails, okay, wash between the fingers also properly, यहाँ तक, okay, you wash, because कभी कभी हम लोग को चीज उठाते हैं तो यहाँ पे भी टच हो जाता है, तो थोड़ा सा okay palm के नीचे तक, wrist तक अच्छे से you wash your hands, okay, so that even if the virus has come home with you, it gets eliminated and you do not spread it to other family members, okay, बहुत अच्छा आभा, very well done, okay, Disha and Nikhil, I'm going to come to you. अगर कोई points common है जो हमने पहले डिस्कस किए, कोई दिक्कत नहीं, you can still say the same points. Why? Because these are valid points. और valid points को तुम कितनी भी बार बोलो, उनका validity और importance कम नहीं होता है, वैसे ही रहता है, okay. तो दिशा से बात करेंगे 2 points, निकिता से बात करेंगे 2 points, then I'll show you the next assignment, I'll tell you which questions to solve on the next assignment, and then we can stop for today, okay. चलो दिशा, over to you. Yes, sir. बोल. Sir, means to keep myself and my family safe in this COVID pandemic, I maintain distance, means whenever I go out बहुत अच्छा है. with the people, means social distance is important. Yes. I wear mask. I always keep sanitizer with me. Yes. And I always wash my hands while I'm going out of work, coming from outside. And then I always keep my immunity system strong, and I do my best to not to get ill, and avoid having cold things because they can affect you, like cough and cold. Yes. So right, so this maintain thing- your health, remain healthy, immunity को maintain करने का, social distancing बहुत important है. If you go outside, you think that नहीं ये group है, मेरे को ये थोड़ा avoid करना चाहिए, you cross the road, go on the other side and walk from there, because if you think यार okay
यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, कोई चीख रहा है, कोई खांस रहा है, या कोई मस्ती कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लोग सीरियस नहीं है, बट मुझको तो एटलीस्ट सीरियस रहने दो, यू कैन वॉक फ्रॉम द अदर साइड। ओके, यू गो एंड बाय वेजिटेबल्स, यू गो एंड बाय फ्रूट्स और वॉट एवर। ओके, तो घर पे आने के बाद उनको अच्छे से वॉश करो, क्लीन करो, उसके बाद उसको यूज करो। ओके, इम्यूनिटी को अच्छे से रखने का, बाहर जा रहे हो तो सैनिटाइजर का बॉटल तो होना चाहिए, एंड मास्क ऊपर तक पहनने का। Okay, so even if you're wearing a mask, okay, ऐसा होना चाहिए when you're outside, at least the mask should cover not only your mouth but your nose also. Okay, बराबर है। आजकल तो डबल मास्किंग बोल रहे हैं, लेकिन डबल मास्किंग अगर नहीं कर पाओगे, अगर सांस लेने में दिक्कत है या थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, बट सिंगल मास्क तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। सो इट्स अ मस्ट, आदत ही अभी हो जाना चाहिए that you don't go out without a mask. Most importantly, you should try to keep your health up. Okay, so that if you're healthy, okay, and you're not troubling your throat by eating very cold products and all, because cold वगैरह खाने से थोड़ा टाइम इम्यूनिटी कम हो जा सकता है, नॉर्मल वायरल हो सकता है, एंड देन एक बार इम्यूनिटी डाउन है, फिर दूसरे इन्फेक्शंस को तुम अलाउ करते हो, ओके, ग्रो करने के लिए। So all of those basic things, very good Disha, सारे basic things मैंने enlist कर दिए। Then quickly, okay, we have made it very difficult for Nikita because इतने सारे points discuss कर लिए हैं, so Nikita is thinking what do I say, but we want your opinion also, Nikita, we want to see what you want to say. Okay, even if it is a repetition of what we have said earlier, or there are some additional very good points, okay, you can tell us, okay, whatever you think. Bolo Nikita. So we wash hands or sanitize our hands. Also, we avoid going in crowded places. बहुत जरूरी Other है, things- not only outside, if you have to go outside, avoid going to a place जहाँ पे crowd है। जैसे सब्जी वाला है, एक के पास गर्दी है, रुको, जब तक गर्दी कम नहीं हो जाता है दूसरे वाले के पास जाओ। But 4 or 5 people are waiting, they're all trying to sort the vegetables, okay, then wait, okay, जरूरी नहीं कि crowded area में जाना ही है। Very good. और निकिता? We sanitize the things brought from outside and also disinfect the surfaces of regular touch. यस, जो रेगुलर टच वाले हैं उसको ये करो, तुम बाहर से आके बैग तुमने रख दिया, ओके, तो बैग को थोड़ा सा बाहर से क्लीन करो। सरफेस सैनिटाइजर्स, तो क्लॉथ सैनिटाइजर्स भी आजकल मिलते हैं, उसको यूज करो। ओके, सब्जी, एग्स, फ्रूट को तुमने लाया है, ब्रेड लाया है, ओके, उसको थोड़ा सा ऊपर से कपड़े से अच्छे से क्लीन करो। ओके, पहले हाथ वॉश करो, वेरी इंपॉर्टेंट टू सैनिटाइज सरफेसेस ऑल्सो विच यू टच रेगुलरली, एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स दैट यू गॉटन फ्रॉम आउटसाइड। वेरी गुड निकिता। और कुछ? निकिता, और कोई पॉइंट है तेरे पास इसके बारे में? और And to maintain immunity, that's yes, fantastic, सबसे important है। ओके, नॉट ओनली ऑफ योरसेल्फ बट अदर पीपल इन द फैमिली ऑल्सो। ओके, जब तक हम लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते, डबल वैक्सीनेट नहीं हो जाते, ओके, तब तक ये करना जरूरी है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हाँ बाबा हमको पहले कभी एक्सपोजर हो गया रहेगा तो हमारे सिस्टम में एंटीबॉडीज रहेंगे, सो वी आर ऑल प्रेडिक्टेड। ये सिर्फ अजम्पशन है, बराबर, यू डोंट नो अनलेस यू हैव डन अ एंटीबॉडी टेस्ट, ओके, एंड यू नो देयर आर एंटीबॉडीज इन द सिस्टम। ये साइंटिफिकली तुम्हारे पास रिटर्न होने तक ये सारे assumptions रहते हैं। So either you have done a test and you are sure that you have antibodies, or okay, you have gotten yourself double vaccinated and then you are sure. अब आजकल डबल वैक्सीनेटेड को भी ख्याल रखने को बोल रहे हैं, because there's a chance that you may get infected. तुमको इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, but you can spread because of the delta plus variant. तो थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है about all of this. But so until we keep taking care, basic precautions follow करते हैं, I think so we should all be okay. ओके, बढ़िया है, बहुत अच्छा। ओके, यू गाइस आर वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी गुड, तुम लोग अच्छा सोचते हो, गुड पॉइंट्स यू पुट फोर्थ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग ओके अच्छे से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्विकली स्टॉप दिस असाइनमेंट। आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट वन इन 1 minute। आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू, बट उसको एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ और उसमें से कौन से क्वेश्चंस आई वांट यू टू डू बताता हूँ। राइट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। बैक्टीरिया यूजफुल हमने देखा, अभी हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कुछ इन्फेक्शन फाइंड आउट करके बताओ कि ये बैक्टीरिया है और ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, एटलीस्ट 4 से 5। ओके, सो राइट डाउन। ओके, थर्ड का आज हमने डिस्कशन कर लिया कि बैक्टीरिया कलरफुल होते हैं कि कलरलेस होते हैं। हमने देखे कि मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस बट सम ऑफ देम कैन डू फोटोसिंथेसिस। हमने पिगमेंट का भी बात किया, तो थर्ड को रहने दो, 2 इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, let us see if you can find some points of difference in plant or animal cell। बेसिक बहुत, या इतना डिटेल में जाने का नहीं, बेसिक कुछ पॉइंट्स है क्या डिफरेंस बिटवीन प्लांट एनिमल। तो 2 है, 4 है। फिफ्थ का ये डिस्कशन हो गया हमारा आज कि हम लोग क्या है, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स में भी हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया, क्या है, होलोजोइक, HOLOZOIC, तो फिफ्थ देख लिया। तो 2 है, 4 है, 6, 2 4 6, मतलब नॉट कोविड के बारे में भी, कोविड का भी SARS-CoV-2 जो वायरस है उसका बारे में, या जनरल वायरस के बारे में। डू यू नो एनी पॉइंट, एनीथिंग अबाउट वायरस, वायरस क्या होता है, ओके,
कैसे इन्फेक्ट करता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, क्या फीचर्स है उसके। तो 2, 4, 6 इज इंपॉर्टेंट, 7 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जैसे मैंने स्पेसिफिक सेल टाइप्स दिए वैसे स्पेसिफिक एक हर एक जन एक सेल टाइप भी कोई सोच के आएगा तो भी मुझको चलेगा। तो एटलीस्ट एक स्पेसिफिक सेल, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरियल, यीस्ट, फंगल, कुछ भी चलेगा, और वो क्या स्पेसिफिक फंक्शन करता है, नेचर ने उसको क्या फंक्शन दिया है उसके बारे में कुछ। ओके, एंड क्वेश्चन 10, सो 2, 4, 6, 7 और 10 ये बाकी का रहने दो। 10 क्या है? ओके, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है? आजकल हम लोग सब लोग वैक्सीन अभी भी हमने बात किया ना, सिंगल वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क, क्या कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का और वो क्यों बेनिफिशियल है। तो वंस अगेन ये असाइनमेंट नंबर 2 है, उसके क्वेश्चन नंबर क्या है? 2, 4, 6, 7 एंड 10। 2, 4, 6, 7, 10। ठीक है, am I clear? Yes? Okay, so I'm going to stop the screen share. ये मतलब शेयर हो जाएगा आज तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे भी और ओके तुम्हारे ग्रुप पे भी। ठीक है, so I'm going to stop the screen share. Fine? Okay? ओके, और तुम लोग मालूम है तुम लोग अटेंडेंस कैसे सेंड करना होता है? यू जस्ट हैव टू राइट P इन योर चैट बॉक्स एंड सेंड, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अगर तुमने अब तक नहीं किया है तो प्लीज करो, और अगर तुम्हारा हो गया है, तुमने अटेंडेंस सेंड कर दिया है मुझको, तो तुम लॉग आउट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टाइप P, सी दैट द मैसेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द होस्ट एंड सेंड इट। दिशा तूने हैंड रेज किया फॉर सम रीजन, बोल सर। बोल, यू वांट टू से समथिंग दिशा? नो नो, नहीं, वो पहले का रेज किया है तूने? या समथिंग प्रॉब्लम इन दैट। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, नो इश्यू एट ऑल। ओके, चलो तुम्हारा अगर अटेंडेंस सब लोग का सेंड करके हो गया, एवरीबॉडी हैज टाइप्ड P एंड सेंड हो गया, तो ये करके देन यू गाइस कैन लॉग आउट। आई विल सी यू ऑन सैटरडे। सैटरडे का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग असाइनमेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और बाद में फिर सेल और सेल थियरी का ओके हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। फाइन, ओके चलो। ओके, आबा यू सेइंग समथिंग? सर आपने कौन से क्वेश्चंस करने बोले असाइनमेंट में, एक बार बोलेंगे प्लीज? असाइनमेंट 2 का ना, असाइनमेंट 2 का ना, हाँ 2, 4, 6, 7 एंड 10। ओके सर, थैंक यू। Okay, chalo. Bye bye guys. I'll see you on Saturday. Have a good week. Okay, see you on Saturday. Bye.